Hello friends, welcome to the Fast Tech Revision series of Competition Committee. Myself Hemant Pradhan. In the FTR series, today we will deal a very important topic of environment, that is a major environmental convention or summit. So let me start today's session of FTR. In the screen there is a first question. Where was the United Nations Conference on Human Environment held? The options are Washington, New York, Geneva or Stockholm. As we know, it's a very easy question. On 5th of June 1972, first time at Stockholm City, United Nations Conference on Human Environment, it was held. So the correct option is Stockholm. So it is also called UNHE, United Nations Conference on Human Environment, and this was the first effort to conserve environment. So in the second question, let me continue. Match the following: Basel Convention, a desertification; Minamata Conference, a climate change; Vienna Conference, a biodiversity; and last one, Bonn Conference, conservation of migratory species. So which one is correct? As we know, Basel Convention basically related with a hazardous waste. Okay, so first is mismatch. Minamata's conference, ये कौन सी ईयर में हुआ था? 2013 में हुआ था. And you can note down Bonn Convention, it is on 1989. And Vienna Conference, that is related with ozone layer conservation, and it was held on 1985, and it was the Framework Convention for Ozone Layer Conservation. Okay, and the last option is Bonn Conference, conservation of migratory species. So A, B, C all are wrong. D is the correct answer, because Bonn Conference, which was held on 1983, basically related with a migratory species conservation and natural habitat. Okay, so D is the right answer. Come to the next slide. There is a third question. The conference related to greenhouse gas emission is Kyoto Protocol, Vienna Conference, Kigali Agreement or Montreal Protocol. As we know, Kyoto Protocol, that is related with climate change or greenhouse gas emission related. The Vienna Conference is related with ozone layer conservation, and it was held on 1985, and it was the Framework Convention. Kigali Agreement, it was held on 2018, and the Montreal Protocol, it was the second effort for the ozone layer conservation. It was held on 1987. Okay, and the Kyoto Protocol, it was held on 1997. Okay, so options A is the right answer, rest are wrong. Come to the next question. Cartagena Protocol is concerned with a pollution, climate change, biosafety agreement, ozone depletion. As we know, Cartagena Protocol basically originate from a CBD. CBD stands for a Convention for Biodiversity. There were three branches. One is a Cartagena Protocol, second is the Nagoya Protocol, and third one is Aichi Targets. I repeat, Cartagena Protocol, Nagoya Protocol, Aichi Targets. These are originated from a CBD, Convention for Biodiversity, and CBD is originated from a First Earth Summit. There were various type of documents were released during that time. CBD one of them. Is it clear? Now, a pollution, climate change, biosafety agreement and ozone layer depletion. So ozone is a wrong option. Pollution is also wrong option, because it is not related with biodiversity, because as we know, Cartagena Protocol, that is related with CBD. Okay. So climate change is also a wrong option. Biosafety, yes, bio word, that is related with a biodiversity. So it was the biosafety agreement, and the correct option is a C.
Come to the next slide. Question number 5. The United Nations Conference on Climate Change was held COP26. It's talking about COP Conference of Party 26. Okay. So options are New York, Manila, Philippines, Madrid or Glasgow. Completely 2020, the year was a COVID year. So due to a COVID problem, it was postponed to 2021 and the new location is a Glasgow, Scotland. And जो 2020 में जो प्लेसेस ऑलरेडी शेड्यूल था वो अब जो है कैंसिल्ड हो गया, लाइक वो पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया और इट वाज पोस्टपोन्ड टू अ ग्लासगो, स्कॉटलैंड. सो इट इज एक्चुअली अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन. वन मोर पॉइंट, UNFCCC, UNFCCC, what does it mean? UNFCCC, that means United Nations Framework Convention to Climate Change. I repeat, United Nations Framework Convention for Climate Change, UNFCCC. और every year इसके क्या होते हैं, मीटिंग्स होते हैं. सो जैसे कि आप देखते हैं COP26, that means the 26th meeting of UNFCCC. And UNFCCC also a document that is originated from a Earth Summit on 1992. Okay, so यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखिए, न्यूयॉर्क, मनीला, मैड्रिड, ग्लासगो. सो मैड्रिड स्पेन जो हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे COP25 का मीटिंग हुआ था स्टार्टिंग में, जो पहले चिली से ट्रांसफर करके मैड्रिड सिटी में हो गया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिली मैड्रिड कॉन्फ्रेंस ऑफ UNFCCC. इज इट क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज डी, ग्लासगो इज द राइट ऑप्शन. Come to the sixth question. Match the following. First World Climate Conference 1979, First Earth Summit Agenda 21, Earth Summit +5 1997, and Carbon Trade a Montreal Protocol. So match the following. So here First World Climate Conference, it was held on 1979 at Geneva. It is on Geneva. Okay. A First Earth Summit Agenda 21, actually it was the document that is originated from Earth Summit, and Earth Summit was held on 1992 at Rio de Janeiro, and Earth Summit +5. So 1992 में +5 ऐड कर दे तो 1997 बनता है. बट 1997 में कौन सा ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ था या समिट हुआ था या प्रोटोकॉल हुआ था? दैट इज अ क्योटो प्रोटोकॉल. तो यहाँ पे क्या है, ये क्योटो प्रोटोकॉल का इसके साथ रिलेशन है. ओके, सो क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था ऑन 1997. ओके, एंड द कार्बन ट्रेड अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो एक्चुअली मिसमैच इसमें, प्लीज करेक्ट इज मैच द फॉलोइंग की जगह आप क्या करें, विच वन इज अ मिसमैच. तो यहाँ पे कौन सा मैच नहीं है ये इसमें पूछा गया है. इसमें थोड़ा सा एरर है, ट्रांसलेशन एरर है, प्लीज करेक्ट इट. ठीक, सो यहाँ पे A, B and C, these all are matched. Carbon trade, that is not related with Montreal Protocol, it is related with a Kyoto Protocol. So Montreal Protocol जो है D इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये मिसमैच होना चाहिए. इज इट क्लियर? अदरवाइज जैसे यहाँ पे मैं क्योटो करके ऑल ऑफ द अबव भी कर सकता था, बट देयर आर अ 4 ऑप्शन ओनली. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट कर दो, मैच द फॉलोइंग की जगह इज दिस विच वन इज द नॉट मैच प्रॉपर्ली आप लिख सकते हैं. तो A, B, C आर मैच्ड एंड D आर अ मिसमैच. इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is question number 7. The Kyoto Protocol is related to ozone layer depletion, climate change, air pollution or biosafety. Kyoto Protocol that was held on 1997, it is related with a climate change or greenhouse gas emission. Okay, so ozone layer depletion is wrong. Climate change, it is the correct answer. Air pollution, no, this is the wrong option because greenhouse gas actually क्या करते हैं, ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. ओके, सो ये भी नहीं है. बायोसेफ्टी तो बेसिकली जो है इससे रिलेटेड नहीं है, वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होता. सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन.
So B is the right option. Is it clear? Come to the next. The Nagoya Protocol related to are related to a toxic substance, environmental pollution, preventing misuse of genetic resources or sources, and the stop greenhouse gas emission. As we know, greenhouse gas emission related protocol is a Kyoto protocol. So this is the wrong. और हमारे में क्वेश्चन क्या है, रिलेट कौन सा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए ऑप्शन, देखिए वो रिलेटेड टू टॉक्सिक सब्सटेंस, ये भी रॉन्ग है क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस से रिलेटेड हमने देखा, बिकॉज टॉक्सिक सब्सटेंस से रिलेटेड हमारे पास जो कन्वेंशन है जैसे हैजार्डस वेट्स होता है तो बेसल कन्वेंशन है, या फिर हम एक रोटरडम कन्वेंशन भी पढ़ते हैं, वो भी क्या है बेसिकली ऐसे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या जो टॉक्सिक होते हैं नेचर के, उस पर जो है बैन करने के लिए क्या है आपका रोटरडम कन्वेंशन भी है। और 1925 में जो जिनेवा कन्वेंशन है वो भी क्या है ऐसे टॉक्सिक गैस और केमिकल से रिलेटेड कन्वेंशन है जो उस पर बैन करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शंस ए इज द रॉन्ग। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी पोल्यूशन के लिए कोई इस टाइप से प्रोटोकॉल नहीं है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन से रिलेटेड जरूर है। प्रिवेंटिंग अ मिसयूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज और सोर्सेज, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। दूसरा लॉजिक ये लगा सकते हैं, नागोया प्रोटोकॉल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम CBD and CBD is the document that is originated from अर्थ समिट, एंड इसकी जो 3 ब्रांचेस क्या है, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और आईची टारगेट्स। सो ये तीनों में CBD से आप रिलेट तुरंत कर सकते हैं। तो जेनेटिक सोर्सेस के मिसयूज को रोकने के लिए ये आपके नागोया प्रोटोकॉल हुए थे। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज अ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, a Durban Climate Conference, Clean Development Mechanism CDM, a Kyoto Protocol, a Carbon Credit, a Montreal Protocol. So in this question there are 3 important match. So Green Climate Fund GCF, actually this is not established from a Durban Climate Conference, it was originated from a Cancun Summit, Cancun Climate Summit or Cancun Climate Conference. So it was held on 2010. So ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, दैट इज फ्रॉम अ कानकून समिट, जो यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, जैसे आप डोंट बी कंफ्यूज हियर, बहुत सारे ऐसे सिटीज के नाम आते हैं। सो एवरी ईयर क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज वाले कॉन्फ्रेंस होते हैं। सो उनमें से एक कॉन्फ्रेंस क्या है, उनमें से एक है डरबन, और वैसे ही है एक क्या है कानकून कॉन्फ्रेंस। सो कानकून जो है वहां से ग्रीन क्लाइमेट फंड का वहां पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैच है, बट यहाँ पे मिसमैच किया है। तो 1 वाले देखिए, 1 वाले ये है, तो ये दोनों को आप रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, किससे रिलेटेड है, मैं बताया था ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से, या आप देखते हैं जो ऐसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ग्रीन जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इट इज द राइट मैच्ड। तो यहाँ पे 2 वाले कौन कौन से हैं देख लो, ये दोनों हैं। कम टू द थर्ड, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ रहा है, तो ये तुरंत मिसमैच करना चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर कंजर्वेशन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। पहला क्या है, वियना, जो 1985 में हुआ था। दूसरा Montreal, it was held on 1987 after 2 years from Vienna, and on Kigali it was held 2018. Okay, so there are 3 important conventions which is related with a ozone layer conservation. So Montreal Protocol and carbon credit, that is the mismatch. So carbon credit का relation actual में किससे, Kyoto Protocol से related है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 यानी कि ओनली C इज द राइट आंसर, ओनली 2 यहाँ पे मैच है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस क्वेश्चन, द रामसर कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड विद अ फॉरेस्ट लैंड, डेजर्ट लैंड, एयर पोल्यूशन एंड वेटलैंड। एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, रामसर दैट इज द सिटी which is located in Iran. The first time for conference, it was held for a wetland conservation, and as we know
Wetland is the very famous zone for a biodiversity density. So biodiversity की जो density होती है बहुत high होती है in the wetland. So option D is the right answer. Rest are wrong. Okay. So it was held on 1971 and it was effected from 1975. Please note down. And there are 42 wetland sites in India. They are located. Where is the headquarter of UNEP? What does it mean? United Nations Environment Program. So ये कौन से क्या हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है पूछ रहा है. नैरोबी, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन. So this was the first time when on 1972 UNHE, United Nations Human Environment Program or Summit, it was held on Stockholm. So 1972 में जो फर्स्ट ह्यूमन इन्वायरमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके बाद एक ऐसा प्लेस को हमको लोकेट करना था जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को रन करे और उसका एक हेडक्वार्टर हो. सो इसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके ठीक बाद क्या है, नैरोबी समिट हुआ था. और नैरोबी समिट को जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, it is the headquarter of United Nation Environment Program. So A is the right answer. रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, तो ये तो रॉन्ग ही है. ठीक है, न्यूयॉर्क वाशिंगटन नहीं है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. देयर इज क्वेश्चन, व्हाट इज द आईची टारगेट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट चेंज गोल्स, अ पॉल्यूशन कंट्रोल गोल, अ बायोडाइवर्सिटी टारगेट. वेरी इजी क्वेश्चन because CBD there are three branches. One is a Nagoya, second is the Cartagena, third is the Aichi target. Aichi, that means it is the city which is located in Japan. So Japan में Aichi जो है कहना चाहिए एक सिटी है, वहां पे ये टारगेट्स, बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स लिए गए थे. 20 ऐसे टारगेट्स लिए गए थे और मेजॉरिटी ऑफ जो टारगेट्स होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए या कंजर्वेशन के लिए बनाए गए. सो इसमें क्या है, 12 टारगेट्स अलग हैं, कुछ शॉर्ट टाइम के हैं, कुछ मिड टाइम के लिए हैं, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए. तो अकॉर्डिंगली इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे टारगेट्स को इंडिया ने अचीव भी कर लिया है. सो इट इज, अगर आपको यहाँ पे ये पता है कि ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम CBD है ना, कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से ओरिजिनेटेड है, दैट मीन्स बहुत इजी लग रहा है. बाकी सभी में किसी में आपको बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कोई टर्म ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, क्लाइमेट की बात कर रहा है, पोल्यूशन की बात कर रहा है. दिस इज नॉट एनी वर्ड विच इज मेंशन्ड फॉर अ बायोडाइवर्सिटी. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी टारगेट होना चाहिए. सो डी इज द राइट आंसर. सो वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस? Berlin, Vienna, Rio de Janeiro, Stockholm. So world first human environment conference, तो यहाँ पे देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस है UNHE. ये रिपीट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन. और ये स्टॉकहोम में हुआ था, हमने स्टार्टिंग में देखा है. ठीक है, सो ये पॉइंट नोट कर लें आप, दैट इज ऑन अ स्टॉकहोम समिट. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. देयर इज क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. अर्थ कॉन्फ्रेंस, एक्चुअली ये सभी में आप प्लीज सबमिट कर लें, ये ट्रांसलेशन एरर है, मतलब समिट कॉन्फ्रेंस बोथ आर सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो सभी में क्या कर लें, सबमिट कर लें. ठीक है, सो अर्थ समिट 1 1992, यस इट इज मैच्ड. अर्थ कॉन्फ्रेंस 2002, ठीक 10 ईयर बाद हुआ था, तो ये मैच्ड है. अर्थ कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट जो है 3 2012, ये भी ठीक 1992 के 20 ईयर बाद हुआ था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियो प्लस 20, सो ये भी मैच्ड है. बट जो लोकेशन है, जो सिटीज है जहां पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ये मैच है कि नहीं देखते हैं. रियो समिट कहते हैं, है ना, 1992 को, बिकॉज इट वाज हेल्ड ऑन अ रियो डी जेनेरो सिटी ऑफ ब्राजील. तो रियो डी जेनेरो, तो ये फर्स्ट ऑफ मिसमैच है. तो फर्स्ट वाले ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाले जो है ये इसको हटा दो, रिमूव कर दो. The second Earth Summit 2 Washington, no, ये कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था. सो जोहान्सबर्ग वाला सेकंड वाला भी मिसमैच है देखो, तो 2 वाले भी आप एलिमिनेट कर दो. ठीक है, तो ये तीनों तो अलग ही हो गया.
अब बचा डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। देख लेते थर्ड, अर्थ समिट 3 2012, तो ये कहां हुआ था? अगेन ये रियो डी जेनेरो सिटी ऑफ ब्राजील में हुआ था, तो ये भी मिसमैच है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नन ऑफ दिस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कम टू द 15 क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग और इट इज मैच्ड। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 CMS गांधीनगर, CMS स्टैंड फॉर कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज। Conference of Parties CBD, Convention on Biodiversity. Conference of Parties 15 UNCCD, that is stand for United Nations Conference to Combat a Desertification, UNCCD, to be announced later. Conference of Parties 25 UNFCCC, please note down UNFCCC, United Nations Framework Convention for a Climate Change. So ये जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं इसको मैच करना है। एक्चुअली इट इज द करंट अफेयर्स मैच कह सकते हैं। सो जो कोप 13 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 हुआ था, ये गांधीनगर में हुआ था। इट इज करेक्टली मैच्ड, प्लीज नोट डाउन। सो 1 वाले यहाँ पे हैं, देखिए, तो बी इसका रॉन्ग ऑप्शन हो गया है ना, ओनली 4 भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सो उसके बाद देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 जो बायोडाइवर्सिटी के लिए था, कुनमिंग चाइना 2021। एक्चुअली ड्यू टू कोविड प्रॉब्लम ये दोनों जो कॉन्फ्रेंस हुआ है होना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ 15 UNCCD वाला भी होना है जिसलिए टू बी अनाउंस लेटर है, और CBD वाला जो कुनमिंग वाला है ये भी बिकॉज ऑफ कोविड प्रॉब्लम इट इज एक्चुअली पोस्टपोन्ड। तो यहाँ पे 2021 में ये फिर से होना है, जो 2020 में होना था बट वो पोस्टपोन्ड हो गया। सो यहाँ पे ये दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 देखो, तो 1 2 3 के हिसाब से क्या है, डी इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC मैड्रिड, तो मैड्रिड के बारे में मैंने बताया था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 जो हुआ था ये हुआ था चिली मैड्रिड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, बिकॉज ये पहले चिली में शेड्यूल था, बट जो कन्वेंशन की कुछ दिन पहले ही चिली गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल एट चिली। सो उसके बाद इसे हमने कहा शिफ्ट कर दिया स्पेन के मैड्रिड सिटी में, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ चिली मैड्रिड अ कॉन्फ्रेंस दैट वाज अ कोप 25 मीटिंग। सो UNFCCC का जो एवरी ईयर जो मीटिंग होता है ना, UNFCCC का जो एवरी ईयर मीटिंग होता है, तो उसमें से एक मीटिंग जो 25 नंबर की मीटिंग थी वो कहाँ थी, मैड्रिड में थी। तो ये सभी मैच दिख रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, come to the next question. Question number 16. Create a correct pairs या match the following भी कह सकते हैं इसे। Geneva Protocol, a hazardous waste management. Basel Convention, a rules of use for mercury. Vienna Convention, poisonous chemical treaty ban on gases and weapons. A Minamata Conference, ozone layer protection framework conference. So please match it. Geneva Protocol that is related with a poisonous chemical treaty. It was held on 1925. Okay, so A3. इसके बाद देखिए Basel Convention related with a hazardous waste. So ये इसका मैच है। Vienna Convention, as we discussed, Vienna Convention related with a ozone layer protection or conservation. A Minamata Conference related with rules for the use of mercury or Hg hydrazine. Okay, so please match it. यहाँ पे थोड़ा इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, प्लीज इसे करेक्ट कर लें। दिस इज द B, दिस इज द C और दिस इज द D. ओके, सो मैच इट जिनेवा, और इसे भी आप प्लीज करेक्ट कर ले 1 2 और 3। ठीक है, सो जिनेवा 1 का C देखो यहाँ पे कहाँ पे है, 1 का C है ना, इसमें देख लेते हैं 1 का C यहाँ पे ये दोनों में है, तो C और D दोनों हो सकता है, तो मतलब A और B को मैं रॉन्ग कर सकता हूं, तो A और B को तो मैं काट ही दिया, इसको आप डिस्कस ही मत करो। ठीक है, इसके बाद देखो बेसल कन्वेंशन जो है किससे रिलेटेड था, मैंने बताया हैजार्डस वेस्ट, तो B का यानी 2 का A होना चाहिए, 2 का जो है यहाँ पे ये जो B है, ये B है का 1 होना चाहिए, तो ये हो गया है ना, ये 1 हो गया, ये दोनों में हो गया, मतलब C और D में अभी भी कंफ्यूजन है, बट C ऑप्शंस के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं इसे।
वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से। तो हम मेरे पास क्या हो गया, 3 का डी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 का क्या है, डी होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या है, 3142, 3142 इसका क्या है, सही ऑप्शन होगा सी, 3142। ठीक है, ये मैच के हिसाब से। तो यहाँ पे प्लीज इसे अच्छी तरह से समझ जाएं, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Question number 17. Which of the following is related to ozone layer protection or conservation? Nagoya Protocol, Cartagena Protocol, Nagoya Protocol related with a biodiversity because there were branches C, B, D और यहाँ से मैं बार बार इसे बता रहा हूँ नागोया, कार्टाजीना, आइची। सो यहाँ पे क्या है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, नॉट रिलेटेड। ठीक है, ओजोन लेयर, कार्टाजीना भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 वाले देखो, 1 वाले और 2 वाले है ना, तो यहाँ पे ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड विथ ओजोन लेयर, यस इट इज ओजोन लेयर बिकॉज हमने देखा है 1 इज अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कौन सा था, वियना, इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, ये 3 थे, तो मॉन्ट्रियल मिल गया। क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड विथ अ ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट चेंज, तो वहां पे क्या है आपका क्योटो प्रोटोकॉल भी क्या है, 4 ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वियना कॉन्फ्रेंस, यस यहाँ पे मैच कर रहा है, और फिर किगाली भी मैच कर रहा है। सो 3 5 6 इज द राइट आंसर, रेस्ट आर रॉन्ग। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18. Agenda 21 is originated from, okay, please correct this. Agenda 21 is originated from a Rio conference, Rio plus 10 conference or summit, Rio plus 5 summit or Rio plus 20 summit. ठीक है, please replace it from a summit. So what does it mean? Agenda 21. As we discussed in Earth Summit discussion, there were different type of document were released during our first Earth Summit on Rio de Janeiro on 1992. So the document were Agenda 21 that is related with sustainable development, forest principle, and there were 3 sister convention originated from Earth Summit, that is UNCCD, UNFCCC and UNCBD. okay, so यहाँ पे क्या है, डेजर्टिफिकेशन का कॉन्फ्रेंस वहां से ओरिजिनेट हुआ है, क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ओरिजिनेट हुआ है, बायोडाइवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस वहां से ओरिजिनेट हुआ है। सो दीज आर द सिस्टर कन्वेंशन। बट ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं एजेंडा 21 और ये बाकी सभी जितने भी देख रहे हैं, तो उनमें से ही एक है एजेंडा 21 दैट इज रिलेटेड विद अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ रियो कॉन्फ्रेंस इट वाज हेल्ड ऑन 1992 और रियो प्लस 10 को क्या हो जाएगा 2002। ठीक है, उसके बाद रियो प्लस 5 जो हो जाएगा ये एक्चुअली में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, और जो यूएनएफसीसी का है जो वो आपका अर्थ समिट नहीं कहा जाता उसे। ठीक है, और रियो प्लस 20 जो है अगेन इसे क्या कहते हैं, अर्थ समिट 3 कहते हैं। ठीक है, so यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज रियो समिट 1992 फर्स्ट अर्थ समिट से। क्लियर हो गया? रामसर कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर? सो ईयर भी यहाँ पूछा है, ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन 1971 देयर इज अ सिटी दैट इज रामसर विच इज लोकेटेड इन ईरान, है ना। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे वेटलैंड कंजर्वेशन को लेके ये समिट हुआ था। वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर एंड देयर आर 42 रामसर वेटलैंड साइट्स लोकेटेड इन इंडिया। एंड रिसेंट जो एडिशन है वो कहाँ है, लद्दाख का वेटलैंड है, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे रामसर कॉन्फ्रेंस रिलेटेड विथ वेटलैंड कंजर्वेशन और द ईयर इज 1971 but it is effected from 1975. Please correct it, note down it. Okay, so come to the next slide. This is the last question of today's session. The main objective of Paris agreements are, Paris agreement कौन सी ईयर में हुआ था, 2015 में हुआ था।
और इससे रिलेटेड सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज strengthens the global responses. Yes, it is correct. Reducing a greenhouse gas and keeping a global temperature rise 2 degrees below the pre-industrial level. It is also correct. Try to stop the temperature rise to 1 degree Celsius. Yes, it is also correct. So option D is the right answer. तो आज का FTR सेशन जो है बेसिकली जो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस और समिट पे बेस्ड था, इससे रिलेटेड और भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट हमने केवल 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। आई सजेस्ट टू ऑल स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड है हमारी संस्था में, तो प्लीज उसे वॉच करिए वो सेशन पे। उसमें बहुत सारे और भी कॉन्फ्रेंस हैं और बहुत सारे ट्रिक्स हैं और दूसरे टाइप के ऐसे एंगल्स बताए गए हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इन्वायरमेंट का एक और FTR जो बेस्ड होगा बेसिकली जो इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, रूल्स हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है, फेमस पर्सनालिटी है जो इन्वायरमेंटल सेक्टर से रिलेटेड है, और हम कह सकते हैं जो पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात करें या एसिड रेन की बात करें, और वैसे मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी से रिलेटेड FTR का थर्ड सेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।